Hello, dear students. Welcome to the class today. Hope you all are doing fine. So, children, we are carrying on with this chapter. As you all know, human environment in tropical and subtropical region. A lot of discussions we have done. I mean, you came to know about many good things, many new things from the Amazon rainforest. A lot of data were there which you have found it out. काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं you found it out and you had discussed it with me. So it was very encouraging to see you all participating so well. Now, in the last class, what we have started is we have started about the Ganga Brahmaputra basin. Okay, you know Ganga river, Brahmaputra river, the important rivers that is giving life to Indians, that is looking after the water requirements of the Indian people, isn't it? So with this water requirement, with this kind of system that we are following, it is very clearly mentioned, it is very clearly given that the people who are living in these areas are practicing agriculture, right? So agriculture that is being practiced, it is because of the monsoon kind of a climate. Okay, and monsoon is bringing rain जून से लेके सितंबर तक. समर तो हॉट होता है, विंटर्स कूल होता है. तो दिस एरिया, द सुंदरबन डेल्टास दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, कल हमने यहाँ पे देखा था. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दीज द प्लेस वेयर द रिवर इज ड्रेनिंग, जहाँ पे इस नदी का पानी बह रहा है, जहाँ पे इस नदी का पानी गिर रहा है, हमने उसके बारे में बात किया. एंड वेयर द रिवर इज फ्लोइंग, दैट प्लेस इज फॉर्म्ड एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड एज अ डेल्टा रीजन. All I told you, all the mud and the silt that the river brings along with its tributaries. Remember the tributaries of Ganga: Ghagra, Son, Gandak, Chambal, Kosi. These are all the tributaries of Ganga, जो कि गंगा के साथ it is draining all its thing in the Bay of Bengal, and this is how the system is carried forward. Now we have to understand where does this state lie. I mean the states जहाँ पे कि गंगा ब्रह्मपुत्र basin is there, वो सारी states हमको देखने हैं. We need to understand which all places, which all states it is crossing. So it is crossing, it starts from here. ये उत्तराखंड से यहाँ पे we have a place, यहाँ पे we see that from here it is crossing all through the states, of which all the states are it is crossing. उत्तर प्रदेश आते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, then no, it's उत्तराखंड, then उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार, all these places होते हुए बंगाल में it is draining. Okay, क्या होता है कि there is something that we need to understand. एक चीज जो हमको यहाँ पे समझनी है, लाइफ ऑफ द पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन थिंग, द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट आर फ्लोइंग. वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टोपोग्राफी. The kind of land that we have, the hills, the mountains, the low-lying areas, ये जितना कुछ भी है, हमको यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, यही चीज को हमको यहाँ पे समझना है. We need to understand कि what is topography. Topography is that which is defining the physical feature of a place. पहाड़ है, रेगिस्तान है, there is plateau region, there is mountain, there is river, there is valley. This all comes under topography. We study that now. How high is the hill? How steep is the slope?
how long we have to go. Got it? All these is included in the topography, and mountain areas are there. Okay, तो topography में क्या है? Mountain areas are there with huge slope. ये देखो आप कितना slopey है. Big areas, बहुत steep चढ़ाई है. Okay, less number of people are living in the mountain area. Mountain में इसलिए बहुत सब लोग नहीं रह पाते हैं. सबसे बड़ी बात कि कहीं भी जाना आना है तो आपको पहाड़ों में चलना पड़ेगा, एंड वॉकिंग इन द हिली एरिया इट इज वेरी डिफिकल्ट. गॉट इट? देन लेस नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग इन द माउंटेन एरिया. जहां पे गंगा ब्रह्मपुत्र इज फ्लोइंग, यहाँ पे जहां भी पहाड़ आ रहा है वहां पे लेस पीपल आर लिविंग. सबसे ज्यादा प्लेन एरिया. अभी आप वाराणसी के आसपास कहीं पहाड़ खोजो, विल यू फाइंड पहाड़ देयर? नो, you will not find any mountain, or you will not find any hilly area here. So the mountain area of the Ganga Brahmaputra basin that is there, the plain area is providing the most suitable land for human habitation. इंसानों के रहने के लिए सबसे अच्छा जो है that is the plain area. So we understand that plain area is most suitable for settlement. Anybody who has to settle in any area, so they have to see, they have to understand that this settlement that is there, अगर वहां पे बहुत सारे पहाड़ होंगे तो कितनी बार क्या होता है, life becomes tough. And in the plain area, something that is very unique, something that is very important is that soil is fertile. यहाँ की जो मिट्टी होती है ना बहुत अच्छी होती है. इट्स क्वाइट फर्टाइल. एंड एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन, ऑब्वियसली सॉइल इतना अच्छा है, आप कुछ भी उसमें खेती करोगे, एनीथिंग दैट यू आर ग्रोइंग इन दिस सॉइल इट विल गिव अ वेरी गुड आउटपुट. बहुत ही अच्छा आपको खेती होगी. सो द पीपल हु आर लिविंग इन दीज एरियाज दे आर प्रैक्टिसिंग समथिंग कॉल्ड एज एग्रीकल्चर. खेती करते हैं. When the soil is so fertile, so what they are doing? They are practicing agriculture. Okay, agriculture is the main occupation of the people. Got it? And land is available to grow crops. जहाँ पे flat land is available ना, आपको crop grow करने के लिए आप पहाड़ों पे कैसे crop grow करोगे? How will you grow crop in the hilly areas? Got it? So the land area that is there is best for growing these crops. तो population is very high. जिसको कुछ भी काम नहीं है, those who are not able to do anything, गांव में रह रहे हैं, what is their occupation? They are practicing agriculture. Best thing, that best job, best occupation that people are involved in is agriculture. And as a result what happens ki most plain area is most suitable for habitation, लोगों के रहने के लिए. सेटल कर जाता है ना, यहाँ पे आराम से रह सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि एग्रीकल्चर से द पीपल आर गेटिंग ऑक्यूपेशन. हैबिटेशन मीन्स पीपल कैन स्टे इन दीज प्लेसेस. प्लेन एरियाज आर बेस्ट वे, बेस्ट प्लेस जहां पे वो एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं और आराम से रह भी सकते हैं. सो द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई. हाँ, अब ज्यादा से ज्यादा लोग प्लेन में सेटल होना चाहते हैं, जहां पे प्लेन एरिया है, वेर इट इज प्लेन एरिया, वेर इट इज नॉट माउंटेनियस. सो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमको कहां मिलता है? वी फाइंड इन द प्लेन एरियाज, डेंस पॉपुलेशन. सो व्हाट हैपेंस? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई. Got it? काफी सारे हैं ना, lot of people who have settled here,
एंड द मेन क्रॉप, यहाँ पे खेती सबसे ज्यादा, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स मतलब बहुत कम जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, एंड मेन क्रॉप हियर इज पैडी। क्या, किस चीज की खेती कर रहे हैं? व्हाट इज द क्रॉप दैट इज ग्रोन मैक्सिमम हियर? ठीक है, सो द क्रॉप ग्रोन मैक्सिमम इज पैडी। गॉट इट? पैडी क्या, पैडी क्या होता है? ओके, राइस, चावल की खेती होती है बहुत। एंड क्या होता है इन पैडी, व्हाट हैपेंस इज कि यू नीड लॉट ऑफ वाटर, sufficient water is needed. So it is grown in the areas where amount of rainfall is high. Okay. रेनफॉल पे ही हमारी इंडियंस का पूरा सिस्टम इज बेस्ड। ऑल द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन दिस रेनफॉल। गॉट इट? जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ही किसानों को फायदा होगा। द फार्मर्स वुड बी बेनिफिटेड, द फार्मर्स वुड बी इन प्रॉफिट, सो रेन्स आर ऑलवेज नीडेड। एंड कल्टिवेशन ऑफ पैडी, क्रॉप ग्रोन इज पैडी, एंड it requires, what happens, lot of water is needed here. पानी चाहिए abundance में, ज्यादा अमाउंट में पानी चाहिए। Got it? So when water is in abundance, the things become very easy. बहुत आराम हो जाता है to grow these crops. Yes, otherwise क्या होता है, suppose बारिश नहीं हुई, that's a trouble time for the farmers. जो फार्मर्स होते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही टफ टाइम हो जाता है। ओके, एंड द रेनफॉल इज वेरी हाई, एज अ रिजल्ट इन दीज एरियाज राइस इज ग्रोन। अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन, खाली राइस की खेती थोड़ी करते होंगे, दे आर फार्मर्स, दे माइट बी ग्रोइंग अदर क्रॉप्स ऑल्सो। सो व्हाट आर द अदर क्रॉप्स दैट दे आर ग्रोइंग? wheat, maize, sorghum, gram, millets. Sorghum? No, you will tell me. Okay? Wheat, maize, भुट्टा। हाँ, ये तो न्यू वर्ड है, ये आपको पता करना है। Sorghum, millets. Got it? Millets भी पता करना है। Okay? Are other crops grown here? यहाँ पे ग्रो करने वाले, I mean in the plain region में along with rice, which are the other crops that are grown? तो ये है of course गेहूं, मक्का, सोरघम। हाँ, सोरघम आप बताओगे मेरे को। मिलेट्स मैं बता देती हूँ। सोरघम यू टेल मी, मिलेट्स आई एम टेलिंग यू। क्या है? इट इज ज्वार, बाजरा, रागी। ये दीज आर दोज क्रॉप्स, ये वो क्रॉप्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कोर्स होते हैं, बहुत बहुत मोटे वाले अनाज होते हैं। मतलब इसको अगर आप, मतलब यू कैन नॉट हैव इट इजली, इतना आसानी से इसको आप नहीं खा सकते हैं। इसके लिए यू नीड, बट इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन। You must always have these millets, jawar, bajra, ragi. These are some of the crops that is extreme. I mean, doctors जब देख लेते हैं आदमी बहुत बीमार है, पेट की बहुत प्रॉब्लम है, then they say कि आटा में जवार मिला के खाओ, बाजरा मिला के खाओ, it is very good for health. Because what happens, we eat lot of oily food. बहुत ना पूड़ी खाते हैं, and burger and butter and ghee and all that. So what happens, these go and I mean it goes and settles in the intestine. हमारे पेट में ये जम जाता है। तो अब जैसे कि आप कढ़ाई देखो, ठीक है, कढ़ाई होता है, कुकर होता है, घर में होता है ना, इट बिकम्स वेरी स्टिकी, बहुत चिकना जब हो जाता है तो क्या करते हैं, हम एक स्क्रब लेते हैं, वी टेक ए वुलन स्क्रब, और उससे हम बर्तन को साफ करते हैं। जल गया है पूरा, तेल लगा हुआ है, उससे व्हेन वी क्लीन इट तो वो क्लीन हो जाता है, बहुत कम टाइम में यू क्लीन इट।
गॉट इट? तो ये जो प्रोसेस हुआ, दिस द सेम प्रोसेस इज डन विद दीज मिलेट्स, कि हमारा इंटेस्टाइन जो गंदा हो गया है, विच हैज बिकम डर्टी बाय ईटिंग डर्टी फूड, सो वी क्लीन इट विथ मिलेट्स. योर इंटेस्टाइन गेट्स क्लेंसेस. रफ अनाज है ना, मोटा मोटा, तो व्हेन इट पासेस थ्रू इंटेस्टाइन, तो ये अपना घी, ऑयल, ये सारा कुछ लेके एंड इट गोस. तो दैट्स वाई ऑल द वो जो चिकने वाले जितने भी फूड हम खाते हैं विच इज नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ, उसको हटाने के लिए हमको ये सारे अनाज खाने चाहिए. सो दिस इज अबाउट द wheat, द maize, sorghum, millets. These are the crops that are grown along with rice and wheat. इसके अलावा what we are growing, there are cash crops also that are grown here. Cash crops are also grown. Cash crops. What are cash crops? As the word itself has the meaning, are those crops which are giving us cash, money, 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 right? Yes, that is that. So how do we get more money? Which are the crops that give us money? हम रोज नहीं खाते हैं इसको, but we use it on a very when we use it, इसको खरीदने में ज्यादा पैसे लगते हैं. चावल और दाल खरीदने में उतना पैसा नहीं लगेगा जितना इसको खरीदने में. Got it? So what happens? Cash crops are grown like, what are the cash crops? Sugarcane. और बताओ, the other crops that give us cash. Okay, sugarcane is there, banana is there. इसमें कैश क्रॉप्स में क्या होता है ना, इट इज ग्रोन ओनली इन द प्लांटेशंस. ठीक है, दीज कैश क्रॉप्स आर ग्रोन इन प्लांटेशंस. आपको इसके लिए यू हैव टू लुक फॉर प्लांटेशंस ओनली. इट इज नॉट ग्रोइंग एवरीवेयर एंड एनीवेयर. हर जगह पे आप गन्ने की खेती या बनाना की खेती नहीं कर सकते. एवरीवेयर यू कैन नॉट ग्रो शुगर केन एंड बनाना. देयर आर ए सर्टेन पीस ऑफ लैंड, एक खास जगह है, मतलब आपके पास एक लैंड पीस है, उसमें पूरी तरह से व्हाट यू हैव ग्रोन इज द, मतलब सिर्फ शुगर केन है तो खाली शुगर केन होगा, बनाना है तो सिर्फ बनाना होगा. Are you understanding? No other crop can be grown where these crops are grown. जहां पे ये क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वहां पे कोई और क्रॉप की खेती नहीं कर सकते हैं. ओके, तो बनाना प्लांटेशन समवेयर, मतलब बहुत जगह पे इन द प्लेन एरिया, मेनी प्लेसेस वी फाइंड द बनाना एंड द शुगर केन. अब क्या है, वेस्ट बंगाल है, असम में टी इज ऑल्सो ग्रोन इन प्लांटेशंस. ओके, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना विच इज ग्रोन इन अ वेरी यूनिक मैनर. एवरी टाइम माने इट्स नॉट इन अ वेरी सिंपल वे. जैसे चावल दाल है, वो भी उसमें भी टू ग्रो दैट ऑल्सो यू नीड लॉट ऑफ एफर्ट. बट देन सर्टेन थिंग्स आर देयर जो कि आप आराम आराम से खेती, सब्जी उब्जी जैसे है. ओके, जो लोग सब्जी ग्रो करते हैं, द फार्मर्स हु आर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, तो दे नो द टेक्निक एंड दे नो हाउ टू अर्न द मनी. लेकिन कैश क्रॉप्स के लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है. इतनी सी जमीन है, इतना बनाना हम लोग खेती करेंगे, एंड देन फिर वो बनाना को कहाँ पे जाके सेल करना है, विच मार्केट इट इज टू बी टेकन, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट. रिमेंबर, यस, मार्केट 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 कहाँ पढ़ा है हमने? सिविक्स में. वी हैव रेड दिस इन पॉलिटिकल साइंस. वेरी ट्रू. सो नाउ यू रिमेंबर, पॉलिटिकल साइंस में मार्केट्स जो हमने पढ़ा है, इट इज रिलेटेड टू दीज प्लांटेशन प्लेसेस फ्रॉम वेयर द पीपल आर टेकिंग दिस टू द होलसेल मार्केट. फ्रॉम देयर इट इज गोइंग टू द रिटेल मार्केट, और वहां से फिर आगे और चीजें जाती हैं, आगे और खेती होती है. गॉट इट? सो कैश क्रॉप्स आर देयर लाइक शुगर केन एंड जूट. Other cash crops are sugarcane. I'm sorry, sugarcane and sugarcane तो हमने कर लिया है. मतलब it is tea. Tea is also grown in plantation. तो sugarcane है,
जूट है, जूट। अब नाउ व्हाट इज जूट? जूट इज दैट, जूट का बैग होता है ना, जैसे बोरा बनता है, ठीक है, उसके बहुत सारे देर आर बिग फाइबर्स इन दैट जूट। जूट इज नॉट यूज फॉर ईटिंग पर्पस के लिए हम जूट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जूट इज एब्सोल्युटली यूज फॉर कमर्शियल पर्पस ओनली। इसका जितना भी इस्तेमाल होता है, इट इज सच अ नेचुरल प्रोडक्ट जिससे कि आप ऐसी चीजें बना सकते हैं, यू कैन मेक सच थिंग्स विच इज वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। नाउ दीज डेज आजकल क्या हो गया है, जूट इज वेरी मच इन डिमांड। जहां पे देखो वहां पे लोग जो है जूट की खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। Why? I'll tell you children, what is happening is कि gradually and slowly a time will come when plastics will disappear from the market. Plastics जब हट जाएंगे तो फिर हमको बैग्स तो चाहिए, we need bags and we need things to carry। तो उसके जगह पे क्या है, अभी भी आप देख रहे हो many people are there who are using these jute bags। तो जूट वाले बैग्स आ जाएंगे विच वुड बी हाईली इन डिमांड एंड विच वुड बी कंसिडर्ड फर्दर। आगे के लिए जो है लोग जूट बैग, तो जूट का बिजनेस जो है ग्रेजुअली एंड स्लोली इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। एंड वेस्ट बंगाल में एंड असम में देयर आर अदर प्लांटेशंस विच आर वेरी मच फाउंड। वेस्ट बंगाल एंड असम, tea plantations are found. Got it? Okay. तो टी प्लांटेशंस आर देयर जब इतने बड़े एरिया में, when the tea is grown, so how come it is happening and how it is managed? It's a very big thing. Wherever tea plantations are, जैसे कि टाटा टी है, ब्रुक बॉन्ड है, all of these tea factories, you know, जहाँ पे टी के प्लांटेशंस होते हैं, चाय के बागान होते हैं, उसी के पास they are laying down their industries। क्योंकि टी लीव्स को वहां से लेकर के दिल्ली आएंगे तब तक तो टी लीव्स खराब हो जाएंगे। तो जो टी दैट यू आर ड्रिंकिंग इन योर हाउस इन द मॉर्निंग, जो चाय पीते हैं, उस चाय को का पैकेट आपके तक जो पहुंचता है, the tea packet that is reaching you, lot of effort is involved in that। बहुत लोगों की उसमें मेहनत लगी होती है। There are the people, there are the ladies who are plucking the tea leaves। देखा है आपने कभी आसाम का वो फोटोग्राफ? हैव यू सीन दोज लेडीज विद दोज बास्केट्स? इनके यहाँ पे बास्केट लगा होता है एंड टी वहां से वो प्लग करते हैं और उसको पीछे बास्केट में डालते जाते हैं। देन दीज बास्केट्स आर एम्प्टीड इन द, वो जो वहां पे कैंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, उसमें डालते हैं। फिर वो ड्रम को इमीडिएटली ले जाया जाता है सो दैट द टी लीव्स आर मेड ड्राई इन व्हेन दे आर फ्रेश। जब वो टी लीव्स फ्रेश हो उसी समय उसको ड्राई कर दिया जाता है, पैकेटिंग कर दिया जाता है। सो व्हेन यू ड्रिंक दैट टी इन द मॉर्निंग, तो उसका आपको अलग ही टेस्ट आता है। ओके, सो टी इज ग्रोन इन द प्लांटेशंस। और कैश क्रॉप्स हैं, देयर आर अदर कैश क्रॉप्स ऑल्सो। हमने यहां से शुरू किया था शुगर केन, बनाना, जूट, टी। अब हम किस कैश क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about the cash crop that is again produced, अभी it is produced in Bihar and Assam and South में भी कुछ जगह पे है। That is silk। कहाँ पे है? It is produced through, silk is produced, silk worm को पहले rear किया जाता है through, वी वोंट से, हम इसको कल्टीवेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन यस क्या होता है, वी हैव टू लुक आफ्टर देम, कल्टीवेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज सिल्क वर्म्स। कीड़े होते हैं, दिस स्मॉल वर्म्स आर देयर एंड वेयर वी फाइंड दिस सिल्क वर्म की रियरिंग, क्योंकि द सिल्क दैट यू आर वेयरिंग, जो सिल्क का कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, इट इज वेरी हार्श। ओरिजिनल सिल्क जो होता है इट्स वेरी एक्सपेंसिव,
बिकॉज बाकी तो जो आप पहनते हैं वो तो मिल में इस तरह से बना हुआ है. आई मीन इट इज द अहमदाबाद का जो मिल होता है वहां पे दे मैन्युफैक्चर दिस काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर देयर विच आर मैन्युफैक्चर. लेकिन बिहार एंड असम में द सिल्क वर्म का जो रियरिंग है इट इज हैपनिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. क्योंकि वर्म्स को खाना खिलाना पड़ता है. द वर्म्स दे ईट समथिंग कॉल्ड एज मलबरी लीव्स. मलबरी के पत्ते वो खाते हैं. एंड देन दीज लीव्स फर्दर दे एक्सक्रीट एंड आफ्टर दैट वो जो फिर उसका जो सिल्क बनता है दैट इज व्हाट उसकी साड़ी बनती है. ओके, तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट फॉर द सिल्क वर्म रियरिंग. सिल्क वर्म को पालना और उसमें से सिल्क निकालना छोटा मोटा काम नहीं है. It's a big task and many people all over India are involved into this work. काफी लोग हैं जो कि इस काम में इन्वॉल्व हैं. ओके, एंड one thing another that is very important here is that you please understand mountains are there, hills are there. जहां पे स्लोप थोड़ा जेंटल है, crops are grown on terrace. And mountains and hills where crops are grown on terrace. Terrace का मतलब क्या होता है? Terrace farming. Yes, सीढ़ियां बना देते हैं, छत जैसा एक एरिया बना देते हैं और वहीं पे सारा क्रॉप को ग्रो करते हैं. माउंटेन को काट काट के इस तरह से. एक तो टेरेस फार्मिंग होता है, एक स्टेप फार्मिंग होता है. स्टेप फार्मिंग, गॉट इट? जहां सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ी को स्टेप कहते हैं ना, वन स्टेप बाय स्टेप. तो एक सीढ़ियां होती है और एक ये टेरेस होता है. सो दिस काइंड ऑफ अ फार्मिंग इज डन जहां पे कि थोड़ा माउंटेन्स है, मतलब स्लैंटिंग इज देयर, लेकिन ऊपर जाके थोड़ा सा फ्लैट है. तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है. सो दिस काइंड ऑफ टेरेस फार्मिंग इज हैपनिंग इन द माउंटेनियस रीजन्स एंड जहाँ पे स्लोप्स आर अ बिट जेंटल. गॉट इट? आई जस्ट वांटेड टू शो यू द location of Indian subcontinent and Ganga river. So students, just now I told you that I wanted to show you the a map of India. I'll show you map of India in some other. Abhi just see the location of India on the globe. Got it? So what I wanted to show you, यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, I'll just show it to you. I wanted to show you that these are the Ganga plains. ये यहाँ पे गंगा प्लेन्स हैं एंड फ्रॉम हियर द गंगा इज गोइंग एंड फ्लोइंग इन द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. दिस यू कैन सी द बे ऑफ बंगाल. गॉट इट? सो गंगा इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर एंड इट इज गोइंग एंड ड्रेनिंग हियर. तो दैट मेक्स गंगा एज वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर विच इज द लाइफ लाइन ऑफ द इंडियन पीपल. ओके, यहाँ पे वी आर सीइंग द अदर, देयर आर मेनी अदर रिवर्स ऑल्सो. In the Indian subcontinent, India में other rivers are also there. Krishna is there, Kaveri is there. That is draining towards the South Indian region में we are finding it. So what happens is you need to understand the location of the Ganga plains. Although we have done it in the map, एक बारी मैप में भी मैंने आपको दिखाया है जहां पे कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र are flowing. So this flow that is there is draining the areas that it is passing through, and we are also knowing that some of the very rich flora and fauna is also developing on the banks of river Ganga. Got it? So this is what I just wanted to tell you children. And today whatever we have done, आज हम लोगों ने जितना भी किया इसमें we have talked about the cash crops, the sugar cane, the jute, the tea. एक चीज तो इसमें हम भूल ही गए, कैश क्रॉप है one of the crops that is very much grown in the South India and very much consumed by the people in India as well as in the other parts of the world, that is coffee. Coffee is also included in the cash crops. And always remember, cash crops are called cash crops because they bring a lot of cash in the country.
हम पीते, हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं, वी ड्रिंक ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो एंड वी एक्सपोर्ट इट ऑन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। तो ये जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, वी आर बेनिफिटेड अ लॉट। गॉट इट चिल्ड्रन? So this is what I wanted to show you. So we'll meet in the next class children. Till then, thank you so much and all the best to you.